you all to this seminar organized by Jaipur branch of CIRC of ICA. We will also be joined by our various branches across Rajasthan. We have program coordinators from various cities. We have C. Arihan Jain ji from Chairman Ajmer branch, C. Amit Agarwal ji from Alwar branch, C. Sham Sundar Khandelwal ji, Chairman Vyawar branch, C. Rakesh Kumar Gupta ji, Chairman Bharatpur branch, C. Nirmeet Gandhi ji, C. Bhilwara branch, Chairman Bhilwara branch, C. Ankush Chopra ji, Chairman from Bikaner branch, C. Yogesh Kabra ji, Chairman from Chittorgarh branch, C. Dhaval Kothari ji, Chairman from Jodhpur branch, C. Mohit Jain ji, Chairman from Kishangarh branch, C. Shashank Garg ji, Chairman from Kota branch, C. Dhanpat Raj Gadia ji from Pali branch, C. Arun Bhaskar ji, Chairman from Sikar branch, C. Dheeraj Kumar Leela ji from Sri Ganganagar branch, C. Shailendra P. Kunabar ji, Chairman from Udaipur branch. I welcome all of you to this seminar today. We are also glad to share that Jaipur branch of ICAI hosted an event celebrating the Mother's Day with the female CAs of Jaipur today. Regarding today's event, recently, in the case of Ashish Agarwal and others versus Union of India, the Supreme Court held that a notices issued to assessees under Section 148 of the Income Tax Act shall be deemed to be issued under Section 148A of the newly amended Act. Thus, the Apex Court set aside all High Court orders with a direction to treat old notices as deemed notices under Section 148A. Today, we have gathered to understand the impact of this judgment on all the Section 148 notices. For this, we have none other than C.A. Sanjay Jhawar ji with us to help us understand this impact in detail. Before I invite Sanjay sir, I would like to invite C. Mudeep Gupta ji, Chairman of Jaipur branch, for his welcome address. Please. Respected CA and Senior Advocate Sanjay Jhawar sir, all the senior members present here and coordinators of the various branches of the Rajasthan. सेक्शन 148 का जो नोटिस आया उसके बारे में पहले तो नोटिस के इश्यूज चल रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सी डेट सही है, कौन सी डेट पे वो टाइम बार्ड तो नहीं है, ये सब चीजें। उसके बाद में कुछ हाई कोर्ट्स के कुछ आए, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का कुछ अभी रिसेंट में जजमेंट आया और बहुत सारे मेंबर्स की क्वेरी भी थी कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन सी डेट तक के नोटिस को अपन को कंसिडर करना है, कौन से को नहीं करना है, डिपार्टमेंट का क्या एक्शन रहेगा, हमने क्या एक्शन इस पे लेना है। इन सब चीजों के लिए जब क्वेरीज मेंबर्स आने लगी और जब हमें जरूरत महसूस होने लगी तो मैं रिस्पेक्टेड सीए एंड सीनियर एडवोकेट संजय झवर सर से अप्रोच किया तो उन्होंने थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन टू बी ए स्पीकर ऑफ दिस सेशन। और सेशन डेफिनेटली ये क्योंकि हाइब्रिड मोड पे है, क्योंकि वेरियस ब्रांचेस ऑफ राजस्थान उन्होंने वर्चुअली भी कनेक्ट हो रहे हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी मेंबर्स से करना चाहूंगा कि जयपुर ब्रांच की अभी डायरेक्टरी अपडेशन पे वर्क चल रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट तकरीबन 8 साल के बाद में ये सब चीजें हो रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैसेज का लिंक आप सभी के पास आ गया होगा, उस पे विदिन 2 मिनट्स का टास्क है, बेसिक डिटेल एंड फोटो अपलोड करनी है लेटेस्ट। मैसेज के थ्रू अगर आपके पास मैसेज में कोई दिक्कत है तो आपको जयपुर ब्रांच की वेबसाइट के थ्रू भी आप उस पर जा सकते हैं और उस पर भी लिंक दिया हुआ है, आप उसको अपडेट कर सकते हैं। फिर भी अगर टेक्निकली अगर कोई दिक्कत आ रही है तो जयपुर ब्रांच में डेडिकेटेड टीम है, आप उनको कॉल करके मैसेज करके आप मुझे फोटो डिटेल शेयर करके भी आप बता सकते हैं। पैरेलली हमारी टीम लगी हुई है आपसे कॉलिंग के थ्रू, तो हम आपसे एड्रेस और अपडेट वगैरह और ये सब चीजें करवा रहे हैं और फोटोज भी मांग रहे हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, अपडेट नहीं किया, प्लीज आप वो कर लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, sir. I would also request C. Ankur Kumar Gupta ji, Treasurer, Jaipur branch, to welcome C. Sanjay Jhawar ji with a green plant and a lawyer by profession and a qualified chartered accountant, C. Sanjay Jhawar is a name which requires no introduction.
Before being designated as a senior advocate, Sanjay Chawarji was the founding managing partner of Chiramrit Legal LLP with an experience spanning 30 years in the field of commercial and business laws. He has successfully litigated on domestic and international taxation, commercial laws, and transfer pricing before tax tribunals, high courts, and Supreme Court. He also has several landmark judgments to his credit. We welcome you, sir. Now, I invite Sanjay sir for his address to help us understand the impact of Supreme Court judgment on the Section 148 notices. Good afternoon, dear friends, and this evening the topic which is for discussion is the recent controversy of Section 148. We all know what happened in High Courts, particularly Rajasthan High Court. What happened, we know, because countrywide this issue was going on. Several High Courts passed the order, and now very recently, in this week itself, Honorable Supreme Court has passed this judgment. All of us must be thankful to the branch that they have organized this meeting as early as the same week, Saturday of the same week in which the judgment has been pronounced. 4th of this month judgment was pronounced, and today it is only 7th. That meeting has been organized, and it is the apt time that we discuss this, as I know that I have been receiving calls from my clients and several chartered accountants as to what to do. So you would definitely be receiving such calls from several of your clients. In cases where it was filed, in cases where it was not filed, in cases where second notices were issued after question by the High Court, in cases where second notices are still awaited, and there can be several permutations and combinations of the facts and circumstances in which different circumstances would prevail, and therefore let us discuss this today. Could anybody help me with this, because it's showing something else on my slide? Can I start this slide from here? All right. Let us understand little background and then go to the present judgment, which will help us understand the judgment better. Because okay, you cannot show it on full screen, it is okay. Okay, I'll do from here. चलने दीजिए. छोड़ दीजिए, मैं कर लूँ. So let us, before we go to the judgment, let us understand the brief background. And to understand the background, what happened, because of which many assessees went to High Court, and they had the grievances against the notices issue. Apart from the general grievances, what happened, what legal infirmity was there, although all of us know, but to briefly catch up that, what happened is that the Relaxation Act had come, and through that act, the timelines for issue of 148 notices was relaxed on account of COVID. Relaxation Act came because of COVID, because in COVID some notices could not be issued. To provide additional time to the department, the Relaxation Act had come.
and that gave additional time, and that time was extended from time to time. And in that, what happened in the meanwhile, वो टाइम जो एक्सटेंड किया उसमें एक्सटेंड करते हुए 21 मार्च 2021 के भी आगे एक्सटेंड कर दिया. And in the meanwhile, in March 21, new act had come, Finance Act 21, which brought out new provisions of 148, 147. तो इधर तो वो पुराने लॉ में टाइम लिमिट एक्सटेंड कर रहे थे. एक्सटेंड करते हुए पहले उन्होंने कुछ और डेट करी, फिर दिसंबर करा, फिर मार्च करी, फिर जून करा. और ये एक्सटेंड करने का जो नोटिफिकेशन है वो रिलैक्सेशन एक्ट के अंदर जारी हुआ. रिलैक्सेशन एक्ट में ये लिखा था कि ये नोटिस जो इस डेट तक इश्यू होने हैं वो इसके आगे तक भी इश्यू हो सकेंगे इस डेट तक, और गवर्नमेंट को राइट होगा कि वो नोटिफिकेशन से इस डेट को फर्दर एक्सटेंड करे. That was the relaxation act. So under relaxation act, different notifications were issued. और ये notification issue होने के बीच में मार्च 21 में अमेंडमेंट आ गया इनकम टैक्स एक्ट में, और उस फाइनेंस एक्ट से पूरे 147 का जो ग्रुप ऑफ सेक्शंस है 147, 148, 148A, 149 वो सब बदल दिए, अमेंडमेंट कर दिए. However, ये जो नोटिफिकेशन इशू करे, इसमें जो मार्च में नोटिफिकेशन इशू करा उसमें खाली डेट बढ़ाने की जगह, रिलैक्सेशन एक्ट में तो लिखा था कि डेट बढ़ाएं, बट इन्होंने डेट बढ़ाने की जगह एक एक्सप्लेनेशन और जोड़ दिया, that the provisions of 148 as they stood before the amendment would apply in respect of these notices where extension has been used. So what happened? The notification exceeded the power given by the relaxation. Relaxation act में तो कहा था डेट बढ़ा सकते हो, इन्होंने डेट बढ़ाने के अलावा ये भी बता दिया कानून कौन सा लगेगा, पुराना कि नया. जो नोटिफिकेशन में नहीं लिखना चाहिए था वो कर दिया इन्होंने. एक्ट के बियॉन्ड, रिलैक्सेशन एक्ट के बियॉन्ड नोटिफिकेशन चलेंगे. डिपार्टमेंट इज बाउंड बाय द नोटिफिकेशन. डिपार्टमेंट में नोटिफिकेशंस में 148 की नोटिस इशू करे, 1/4/2021 के बाद भी पुराने लॉ में नोटिस इशू करे, क्योंकि नोटिफिकेशन ने परमिट कर रखा था, उन्होंने इशू करे. So what assessees did, assessees challenged that ये कैसे हो सकता है जब कानून ही नया आ गया और आपका नोटिफिकेशन पुराने कानून को यूज करने की बात कर रहा है, तो फिर नए कानून को नोटिफिकेशन कानून के ऊपर कैसे हो सकता है? क्योंकि आज तक तो हमने समझा है कानून सबसे ऊपर है, नोटिफिकेशन या रूल्स उसके बाद में है. नोटिफिकेशन चाहे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, बट दैट कम्स आफ्टर द लॉ. Cannot substitute the law, it cannot change the law, it cannot contradict the law. जबकि यहाँ लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. तो इस ग्राउंड पर लोग हाई कोर्ट्स में गए कि ये जो नोटिफिकेशन है वो अपनी बाउंड्रीज को एक्सीड कर रहा है, अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर रहा है. नोटिफिकेशन को में ये नहीं लिखना चाहिए था कि पुराना कानून लगेगा, और इसलिए ये नोटिफिकेशन तो बैड है ही, बट इवन द नोटिसेस आर बैड. जो उस नोटिफिकेशन को फॉलो करते हुए इशू हुए हैं, those notices are also bad and ultra virus, unconstitutional, therefore those notices should be quashed. So these were the grounds before the High Court, and as all of you know, कानून नया आ गया 1/4/2021 से, और नोटिसेस पुराने कानून में इशू हो रहे हैं. तो लॉ में जो नए कानून में 148A सेक्शन आया वो फॉलो नहीं हो रहा है. जो प्री 148 प्रोसीजर डिफाइंड है वो फॉलो नहीं हो रहा है. लोगों को सेफगार्ड करने के लिए पार्लियामेंट ब्रॉट दिस न्यू लॉ दैट बिफोर इशुएंस ऑफ 148 दे विल बी इशूड a 148A show cause notice, and after the assessees have replied to that, and after that has been disposed of, after that only the notices under section 148 could be issued. And apart from these safeguards, several other safeguards were also captured in the law, like change of limitation for reopening in 149, and also approval of specified authority required for these notices. तो इसमें जो ग्राउंड्स लिए गए हाई कोर्ट में चैलेंज करने के, वो 148 का प्रोसीजर 148A का फॉलो नहीं हुआ.
इसके अलावा ये भी ग्राउंड लिया गया कि अब नए कानून में 1/4/2021 के बाद रीओपनिंग की टाइम लिमिट सिर्फ 3 साल होगी। 3 साल के बाद केसेस रीओपन केवल 50 लाख रुपए से बड़े केसेस में कर सकते हैं, छोटे केस में नहीं कर सकते। तो उन ग्राउंड पर भी चैलेंज किया और अप्रूवल अब पीसीसीआईटी की जरूरत है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की जरूरत है। प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की अप्रूवल से नहीं चलेगा, जबकि हमारे केस में अप्रूवल ऐसे नहीं लिया गया है। इन ग्राउंड्स पर चैलेंज किया और इस और ग्राउंड पर भी चैलेंज किया कि रीजंस में लिखा हुआ है कि रीजन टू बिलीव है, इसलिए हम नोटिस इशू कर रहे हैं, जबकि नया कानून कहता है रीजन टू बिलीव की बात नहीं करता। वो कहता है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और इंफॉर्मेशन कौन सी, which has been defined in the new law, and that scope is very very limited. So that ground was taken. Apart from that, ये नोटिफिकेशन पे जो रिलाई किया 31/2021 रिलैक्सेशन एक्ट का, उसको लोगों ने चैलेंज किया कि नोटिफिकेशन बैड है, तो उसमें जो नोटिस इशू है वो भी बैड है। एंड 1/4/2021 से फाइनेंस एक्ट ने पुरानी प्रोविजंस को रिपील करके दे ब्रॉट द न्यू प्रोविजन। Therefore, how the repealed act, which has been specifically repealed, how that can be utilized for issuance of notices. So these were some of the main grounds which were taken in the writ petitions for challenging the notices issued after 1/4/2021 under the Income Tax Act under Section 148. In many cases, the notices were issued. The date of notice was 31st March 21. But they were issued by email dated 1/4/21, or they were delivered after 1/4/21. Even those notices were challenged, and the relief was granted by the high courts, because when they are issuing through email and the issue date mentioned the email is 1/4/21, then the date of notice would not be relevant, but the date when it was issued and it was put into motion of service, that becomes relevant. Was not put into motion of service on 31st March. It was put into service on 1st of April. Therefore, they were considered to have been issued after 1st of April, when the new act was introduced or amended. The income tax law was amended, and therefore, even those notices were challenged, and high courts granted relief in that. So after that, to help in changing the slide. Not changing. This is the next slide. Yes. Yes. What project? What the fact?
Sorry for the interruption. The reasoning of the High Court was based on these arguments, and these were the reasonings which were given by the High Court, that reassessment proceeding on or after 1st of April 2021 could be initiated only in accordance with the amended provisions. All the High Courts, Allahabad High Court, Rajasthan High Court, and also Delhi High Court, all of them, also Bombay, all of them gave this view that this could be only in accordance with new provisions, and old provisions cannot be used despite the notification issued under the Relaxation Act. And Revenue's argument about the non-obstantiate clause and about Section 3(1) of the Relaxation Act were overruled, because that act was for limited purpose and notifications were issued only under that act. And this unanimously, all the High Courts held that the notices were bad. Some of the High Courts held that even the notification was bad. But at the same time, most of the High Courts did what Rajasthan High Court did. They said that fresh notices can be issued under the new law. So it is very important and interesting that this particular thing does not come under discussion in the Supreme Court. Supreme Court judgment has been passed under, I think, the assumption that fresh notices cannot be issued. So they made the same notices live, which were quashed. However, the High Courts had mentioned in most of the cases that wherever we are quashing the notices, we are making it clear that fresh notices under the new law, subject to the provisions of the new law, subject to the time limit of the new law, subject to the conditions attached to the new law, those notices can be issued. So that was the clarification issued by all the High Courts. Now, the controversy before the Supreme Court, in the Supreme Court, the matter which went was the Allahabad High Court's matter, which was decided at first, that went to the Supreme Court, and that controversy went to the Supreme Court. Supreme Court, first of all, what it held is important in Para 7, and it held that we have to read the judgment of the Supreme Court final conclusion in light of this background. The Supreme Court was conscious of the view that new 148A provisions were to help the assessors. This is very important. Supreme Court categorically held that. The new provisions are liberal or are in favor of the assessee, or were introduced, or the new law was amended to help the assessees. And therefore, I would like to read these lines the Supreme Court has mentioned. The new provisions substituted by the Finance Act 2021, being remedial and benevolent in nature, and substituted with a specific aim and object to protect the right and interest of the assessee, as well as, and the same being in public interest, respective High Courts have rightly held that the benefit of new provisions shall be made available even in respect of proceedings related to past assessment years, provided Section 148 notice has been issued on or after 1st April 21. So the important thing which Supreme Court observed is two things. Number one, they observed that 148 new provision is to grant benefit to the assessee. They are benevolent provisions. So under those provisions, assessee can be benefited. So that was observed. And second thing is that the new provisions would apply to all pending cases. They may pertain to past years, but still new provisions would apply, because the new provisions are kind of machinery provisions. They are pertaining to the procedural law which apply to all pending cases. So this was also held by Honorable Supreme Court. Apart from that, what Supreme Court held is that these are the important points what Supreme Court held. In a gist form I have mentioned on the slide. The judgment of the High Court would result in no reassessment proceedings at all, even if same are permissible as per substituted Section 147 to 151. Please mind, Supreme Court ने पहले तो observe किया कि High Court के judgments correct. Para 7, Supreme Court says High Court गलत नहीं है. High Court is correct.
क्योंकि जो प्रोविजन बेनिफिट करने के लिए आया वो प्रोविजन नया प्रोविजन ही लगना चाहिए। इवन इफ द असेसमेंट years were past years, नया प्रोविजन लगना चाहिए, तो वो जजमेंट्स करेक्ट है। बट thereafter Supreme Court recorded certain things like in 90,000 cases what has happened is notices have been issued after 1/4/21 under the old law despite the fact that new law has come. तो उन्होंने कहा कुछ करना पड़ेगा क्योंकि 90,000 नोटिस जहाँ इशू हो गए वहां हाईकोर्ट सही है, सब कुछ ठीक है, हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही किया, लेकिन रेवेन्यू का बहुत सारा नुकसान हो जाएगा और इसलिए हमको कुछ करना पड़ेगा। बिकॉज ये रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाएगी। आई फाइंड अ लिटिल कंफ्यूजन हियर बिकॉज हाई कोर्ट्स ऑब्जर्व क्लियरली कि जहां जहां परमिटेड है वहां नए नोटिस भी इशू कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर ऐसे खत्म कर दिए तो रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स ही खत्म हो जाएगी। This was little contradictory to what High Courts mentioned at the end. Perhaps that was not observed by Supreme Court, but we go as Supreme Court says. Supreme Court assumes that once 148 notices have been quashed, no reassessment can be done. Perhaps in some cases, this finding could help the assessees. That once it is quashed, it is quashed. But please mind what Supreme Court says, we would save those notices. So what they say, however, revenue cannot be left remediless. So Supreme Court assumes as if this order is not passed, ये क्वेश हो गया तो रेमिडिलेंस हो जाएगा। हमने अगर ऑर्डर पास नहीं करा तो उस केस में रीअसेसमेंट हो ही नहीं सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने प्रिज्यूम करा, एंड दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट मेंशन that revenue cannot be left remediless and objected purpose of reassessment proceedings cannot be frustrated. So they assume it would be frustrated. Apart from that, what Supreme Court further observed is that genuine non-application of amendment as the officers of the revenue, they have been under a bona fide belief that the amendments may not yet have been enforced. This was, I think, very lightly Supreme Court has mentioned how a revenue officer can be under the bona fide belief that the act which has been passed by the parliament and which has got the assent of the president has still not been enforced. They mentioned that they were under the bona fide belief that still that law has not been enforced. Now the real problem before them was that they had two things: one, the law of the parliament, and another, the mandate of central government. And Supreme Court should have come very heavily on them, that once they have Parliament's mandate and the central government's mandate, they should have followed what Parliament has said, but they are following their bosses, means the central government. So this is their mistake. Rather than that, Honorable Supreme Court mentions that they were under the bona fide belief that law was not enforced because central government mentioned that the date has been extended and old law would apply. So Honorable Supreme Court mentioned that there was genuine non-application on their part because they had two mandates. Therefore, which one to follow? They were under the bona fide belief that we have to follow what central government says rather than following what Parliament says. So they say that on account of this bona fide belief, we have to give some leeway to the department and we have to show some liberal approach towards the department in this case, and we have to strike a balance because 90,000 notices have been issued and there will be a loss to public exchequer. In real terms, it was not, but perhaps in some of the high courts, the orders were not like this, and therefore, because Supreme Court judgment was meant to apply to all these 90,000 odd cases, therefore they passed a general remark that this would be, there would be a loss to the revenue, therefore we are passing this on. At this stage, we must also know that Supreme Court invoked the special powers under Article 142 of the Constitution in this. तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 है क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इन्वोक किया, इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 142 बहुत ब्रॉड पावर्स देता है। 141 नॉर्मली एंड ऑर्डिनरीली courts are meant to
make interpretation of the law and enforce the law as has been made by the parliament. They cannot make the law. Courts cannot make the law. They can enforce the law. They can clarify the law. They can declare the law. They can make interpretation of the law, but they cannot make the law. But Article 142(1) gives a special power to the Supreme Court that in some circumstances where it feels that the justice to the matter can be given only when an order of this kind or decree of this kind can be issued, it can indirectly make a law. And Supreme Court says we are invoking Article 142(1) in this case. And what this article says that Supreme Court in exercise of jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, and decree so passed. And once such order is passed, 142(1) में दो important चीजें powers brought. And second thing is that once such order is passed, this applies across the board throughout the country. जैसे लॉ अप्लाई होता है वैसे अप्लाई होगा, अदरवाइज नॉर्मली उस केस में अप्लाई होना चाहिए, बट यहाँ पे ये जिस केस में ये ऑर्डर नहीं पास हुआ वहां भी अप्लाई होगा. This is Article 142(1) and therefore they invoke this special article to pass this judgment. And what Supreme Court did, what directions it did, it gave, what judgment it passed. Supreme Court said that notices issued under the amended 148 shall be deemed to have been issued under section 148A of the Act. Supreme Court said that whatever notices have been issued after 1421 under section 148, which have been quashed by the High Court, they shall be deemed, we'll presume that they have been issued under the new law. Again, this is very important. Supreme Court does not say that it shall be deemed that they have been issued prior to 1421. ये deem नहीं किया है. इशू तो 1421 के बाद ही किए गए हैं, अब बाद वाले ही माने जाएंगे, लेकिन माना ये जाएगा 1421 के बाद लॉ नया आ गया है. उस नए लॉ का जो सेक्शन है 148A शो कॉज नोटिस का सेक्शन, उसमें नोटिस इशू किए, ना कि पुराने 148 में. तो आप उसको नोटिस को पढ़िए एज इफ दे हैव बीन इशूड इन 148A एंड नॉट अंडर 148. अब इस पे ये सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन बहुत चालू होने वाला है, बिकॉज वो कुछ ऐसे नोटिस हैं जो डीम नहीं किए जा सकते. वो शो कॉज नोटिस माना ही नहीं जा सकता, वो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है, या दूसरे नॉन कंप्लायंसेस हैं तो 148A में माने कैसे. But there are many cases which would fall here. So there will be several category of cases. I will try to discuss all category of cases here. But let us first understand what Supreme Court did. Judgment उन्होंने क्या पास किया और फिर अलग-अलग केस में क्या होगा वो बाद में बात करते हैं. Judgment क्या पास किया वो पहले समझते हैं. And then they mention that revenue shall provide. पहले तो आप उन notices को ये मान लीजिए as if they are issued under 148A. And then डिपार्टमेंट को ये कहा कि आप अब ये अगर उसको मान लेते हैं किसी 148 के नोटिस को 148A का नोटिस मान लेते हैं तो ए वाली रिक्वायरमेंट कुछ पूरी नहीं हुई, वो गड़बड़ हो जाएगी. सो व्हाट दे सेड कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है एसएससी को और मटेरियल रिलाय जो डिपार्टमेंट कर रहा है वो प्रोवाइड करना है, दैट वुड बी प्रोवाइडेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. मतलब वो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट 4 तारीख को पास किया, 4 मई को, तो 3 तारीख तक, 3 जून तक उनको ये देना है. 31 का महीना है, 30 डेज के लिए 3 तारीख को खत्म हो जाएंगे 30 डेज, तो 3 तारीख तक उनको देना है. 3 तारीख के पहले पहले इनको इंफॉर्मेशन और मटेरियल प्रोवाइड करना है. एंड the assessee can reply to the aforesaid notices within 2 weeks thereafter. ये टाइम लिमिट उन्होंने अपने आप से फिक्स करी कि इसके 2 वीक में assessee रिप्लाई करे. उसके बाद what will happen is the requirement of conducting an inquiry. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ में जो लिखा हुआ है कि 148A में if required inquiry can be made,
ये कह रहे हैं कि एज ए वन टाइम मेजर, क्योंकि वो काम तो हो चुका है, हमने उस 148 के नोटिस को ही 148 का मान लिया, तो अब इंक्वायरी तो हो ही नहीं सकती जो नए लॉ में होनी है। तो इन्होंने कहा कि वो इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट डिस्पेंस विद कर देते, इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन व्हाट दे हैव डन, बिकॉज उस इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है इफ एनी, तो उसकी जरूरत नहीं थी, बट स्टिल दे हैव व्हाट दे हैव डन इज दे से दैट वी आर dispensing with the requirement of doing any inquiry. Then revenue shall thereafter pass order under section 148A of the act. इसकी टाइम लिमिट उन्होंने नहीं दी, क्योंकि इसकी टाइम लिमिट क्लॉज डी में दी हुई 30 डेज। जब ऑब्जेक्शन फाइल कर दे एसएससी, उसके 30 दिन में 148A डी क्लॉज डी का ऑर्डर पास करना है। प्रैक्टिस क्या चल रही है डिपार्टमेंट की, क्लॉज डी का जो ऑर्डर पास करते हैं ऑब्जेक्शन डिस्पोज ऑफ करने का, उसके साथ ही 148 का नोटिस भी देते हैं, क्योंकि अब 148 का नोटिस देने का काम 148A के नोटिस देने के बाद ऑब्जेक्शंस फाइल होंगे, ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ करने का ऑर्डर 148A डी का पास होगा, उसके बाद 148 देना है। तो डिपार्टमेंट ये दोनों काम साथ साथ कर रहा है, 148A डी का ऑर्डर पास करना, तो ऑर्डर डिस्पोज ऑफ करना, 148A के ऑब्जेक्शंस डिस्पोज ऑफ करना, and notice under section 148. So this is what the Supreme Court says, that ये 148A D का ऑर्डर डिपार्टमेंट पास करेगा as per 148A D, मतलब 30 days में। But at the same time, what Supreme Court has done, it has protected all the assessees by saying that all defenses and rights available to the assessees in law, including under section 149 as amended by Finance Act 21 shall be available. सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि उसके बाद रीअसेसमेंट ऑर्डर हो जाएगा या उसके बाद रीअसेसमेंट चालू कर देंगे, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा है इन दिस प्रोसेस असेसी को सारे डिफेंसेस वो अवेलेबल रहेंगे जो नए लॉ में अवेलेबल है। तो नए लॉ में डिफेंसेस 149 का तो स्पेसिफिक रेफरेंस ही डाल दिया, टाइम लिमिट वाला तो अवेलेबल रहेगा, but all other defenses would also remain available to the assessees, and this is very clearly mentioned. And what would be those defenses, we will understand today. So those defenses would remain available to the assessees in this process of new notices or reassessment proceedings, which would begin now. Before we understand the consequences under different assessment years, we know what is the new time limit, and new time limit में 3 साल ऑर्डिनरी टाइम लिमिट है, जो पहले 6 साल हुआ करते थे, अब 3 साल टाइम लिमिट है, और एक्सटेंडेड टाइम लिमिट अब 10 साल है। 10 साल वाली टाइम लिमिट में 50 लाख की एक लिमिट है, मॉनेटरी लिमिट है। 50 लाख से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तब वो एप्लीकेबल होगा। बट इस 50 लाख वाले प्रोविजन में जो एक्सटेंडेड टाइम लिमिट वाला प्रोविजन है, उसमें एक अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 21 से भी आ गया है। पहले इसमें केवल वैल्यूएबल्स के बेसिस पर रीओपनिंग हो सकती थी, अब इसमें इंफॉर्मेशन के बेसिस पर भी हो सकती है। तो 50 लाख कुड बी एनीथिंग, जिसके बेसिस पर भी रीओपनिंग हो सकती है, वो अमाउंट अगर 50 लाख से ज्यादा है, इन दैट केस द केस कैन बी reopened beyond 3 years time limit. Within 3 years time limit, it cannot be reopened. However, first proviso is important, which is again saving the assets. First proviso is 149 का क्या बोलता है? That says that it may so happen कि किसी केस में पुराना जो 149 का सेक्शन था, उसमें टाइम लिमिट एसएससी की पहले ही खत्म हो गई हो 31/5/2021 के पहले, और 1/4/2021 के बाद जो नया 149 आया है उसमें टाइम लिमिट अवेलेबल, तो क्या होगा? तो ये कहते हैं कि इस 149 में 10 साल की वजह से उस आदमी का केस हम नहीं खोलेंगे जिसकी टाइम लिमिट पुराने लॉ की वजह से खत्म हो गई है। नए लॉ में आप नया लॉ बना के जो
क्लोज्ड मैटर है, उनको रीओपन नहीं करते। क्लोज हो गया अगर 31 मार्च 2021 को तो हो गया। नए लॉ में अगर ऑलरेडी वो ओपन, पुराने लॉ में ओपन किया जा सकता था, तो नए लॉ में नए लॉ के हिसाब से ओपन किया जा सके, बट इट विल नॉट हैपन। पुराने लॉ में ओपन किया ही नहीं जा सकता था, और अब नए लॉ आने की वजह से नया राइट मिल जाएगा डिपार्टमेंट को ओपन करने का। दिस इज प्रोविजो टू 149(1) एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे केसेस इसमें भी फॉल होंगे, पर्टिकुलरली असेसमेंट ईयर 2013-14 और 14-15 के, जिनकी टाइम लिमिट पुराने लॉ में 31 मार्च 2021 को खत्म ही हो गई। 6 साल 13, 14 और 14-15, तो जब वो टाइम लिमिट खत्म ही हो गई, नया लॉ 10 साल की टाइम लिमिट भी दे रहा है, तो मैटर 50 लाख से ज्यादा का ही क्यों नहीं हो, वो कैसे रीओपन हो सकता है? क्योंकि प्रोविजो नए लॉ का साफ साफ कहता है कि जिनका केस 31 मार्च 2021 को खोलने की टाइम लिमिट पूरी खत्म हो गई, वो 1/4/2021 के बाद नए लॉ में 10 साल की आने के बाद भी नहीं खोल सकते, चाहे अमाउंट 50 लाख से ज्यादा ही क्यों, चाहे 10 करोड़ का अमाउंट क्यों नहीं, बट वो केस नहीं खोल सकते। So this is very important, and this would be saving many assessees, and because of this, let us understand this year-wise chart that 13-14 और 14-15 में न्यू लॉ, पुराने लॉ में तो नहीं खोल सकते, नए लॉ में जनरली नहीं खोल सकते, 50 लाख से ऊपर हो तो खोल सकते हैं नए लॉ के हिसाब से, बट ये नहीं खोल सकेंगे बिकॉज ऑफ द प्रोविजो। 15-16, 16-17 और 17-18 ये 3 साल वो है जो पुराने लॉ के हिसाब से 6 साल खत्म नहीं हुए, खोले जा सकता। नए लॉ में ये डाल दिया कि 50 लाख से ऊपर है तो खोले जा सकते हैं, 50 लाख से नीचे तो नहीं खोले जा सकते। तो ऐसे क्या करेगा, यहाँ पे नए लॉ का बेनिफिट, 13-14, 14-15 में तो पुराने लॉ का बेनिफिट, क्योंकि उसमें प्रोविजन लग रहा है, और 15-16, 16-17, 17-18 में मेन लॉ ही लग रहा है 149। 50 क्लॉज बी, क्लॉज ए में तो 3 साल ही टाइम है, क्लॉज बी में 50 लाख से ऊपर की लिमिट आ गई, तो 3 साल के बाद एक्सटेंडेड पीरियड तो तभी यूज हो सकती है जब 50 लाख से ऊपर का हो। किसी का 30 लाख रुपए का अमाउंट हो तो वो दिस कैन नॉट बी रीओपन इन न्यू लॉ। तो पुरानी लॉ की टाइम लिमिट होते हुए भी पुराना लॉ चलता तो उसमें खोला जा सकता था, बट नए लॉ में नहीं खोला जा सकता। तो assessee would say that main section 149 apply, time limit applies, and therefore it cannot be reopened under this section. So 15-16, 16-17, 17-18 में assessee को बेनिफिट होगा जहां जहां 50 लाख से कम अमाउंट है, वहां मेन प्रोविजन लगेगा और वो नहीं खोला। 18-19 के बाद तो 50 लाख से कम भी अमाउंट है तो भी नए लॉ में भी आ रहा है, पुराने लॉ में भी आ रहा है, इसलिए वो खोला ही जा सकता है। So that is not required to be discussed. So on the basis of monetary limit, this is what we should understand. But apart from that, what we must know and what we must realize is there could be several other reasons because of which 148A notices or 148 notices which have been deemed to be 148 are still invalid or can be claimed to be invalid. For example, most common thing is that उन्होंने क्योंकि पुराने लॉ में काम किया तो सब केसेस में प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की अप्रूवल नहीं ली, प्रिंसिपल कमिश्नर की अप्रूवल ली। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करते हुए डिस्पेंस भी करा है केवल रिक्वायरमेंट ऑफ इंक्वायरी, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग अप्रूवल फ्रॉम प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर एज पर द प्रोविजंस ऑफ न्यू लॉ पर डिस्पेंस। So that means if the approval has not been taken from principal chief commissioner of income tax, that is still bad, that can still be challenged. Another ground on which it can be challenged is, suppose the reasons recorded are on the basis of
some Supreme Court judgment, some High Court judgment, some change of opinion, and not on the basis of information which is there in the notified risk management strategy of the board. नया कानून जो है उसमें 148A खोला जा सकता है, वो इंफॉर्मेशन की बेसिस पर खोला जा सकता है। इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन नए कानून में दी हुई है, उस डेफिनेशन में सिर्फ दो चीजें लिखी हुई है और वो डेफिनेशन में इंक्लूड्स वर्ड नहीं है, मीन्स वर्ड। इंफॉर्मेशन मीन्स, इट डज नॉट से इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स, और उस मीन्स में केवल दो चीजें, that it is as per the risk management strategy framed or formulated by the board in this behalf। तो आप बोर्ड की रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में वो इंफॉर्मेशन आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो वो इंफॉर्मेशन है। और सेकंड है, अगर सीएजी की फाइनल ऑडिट रिपोर्ट में वो ऑडिट ऑब्जेक्शन है, अगर ये दो चीजें हैं देन इट इज कंसीडर्ड टू बी इंफॉर्मेशन। इन दो चीजों के अलावा कोई चीज है तो वो रीजन टू बिलीव तो हो सकता था, इंफॉर्मेशन नहीं। एंड देयरफॉर इट कैन स्टिल बी चैलेंज्ड इफ द ग्राउंड्स आर बियॉन्ड दैट। So that is another important thing which is there, and therefore although the way forward is पुराने नोटिस को नया नोटिस 148A का मान लेंगे और असेसिंग ऑफिसर को कॉपी शेयर करनी पड़ेगी और आपको ऑब्जेक्शंस सबमिट करने पड़ेंगे और असेसिंग ऑफिसर को 1 महीने में ऑर्डर पास करना पड़ेगा। बट अब अगर इनमें से कोई बात है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, जैसे एक तो ये चार्ट, ये आपका 13, 14 या 14, 15 है, उसमें भी इन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी और आपने ऑब्जेक्शन दे दिया कि साहब इसमें क्या कर रहे हो, ये तो 13, 14, 14, 15 ये तो बाहर गया। Still they are passing the order that no 148 this is maintainable for such and such reason, और 15, 16, 16, 17, 17, 18 में वो ऑर्डर ये पास कर रहे हैं कि साहब 50 लाख से कम है तो भी लगेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, ये वैलिड है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरह की हाइलाइट्स आई इस जजमेंट की, सुप्रीम कोर्ट के केस की हाइलाइट्स आई 2 दिन 3 दिन व्हाट्सएप पे, उस हाइलाइट्स में सब जगह ये था कि रेवेन्यू की फेवर में जजमेंट पास हो गया, और उस हाइलाइट्स की वजह से हाईकोर्ट के कॉरिडोर में हमारे जो सामने वाले वकील थे, डिपार्टमेंट वाले, उन्होंने भी हमको कहा सर वो जजमेंट हमारे फेवर में हो गया। हमने ये कहा भी आपके फेवर में कैसे हो गया, हमारे ख्याल से हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया तो सेम ही जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं आया। हाईकोर्ट ने ये कहा था कि भाई नया नोटिस फिर से इशू कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नया नोटिस की जरूरत नहीं है, पुराने नोटिस को नए इशू का नए का नोटिस मान लेंगे, लेकिन डिफेंसेस को सारे अवेलेबल रहेंगे, हमारे हिसाब से कोई फर्क ही नहीं है। हाईकोर्ट ने जो पास किया वो आज भी वैलिड है। उन्होंने कहा सर ये क्या हो गया, तो फिर तो एक राउंड और आएगा हाईकोर्ट। तो अभी डिपार्टमेंट के दिमाग में ये है कि ये जजमेंट ने हाईकोर्ट का जजमेंट को रिवर्स कर दिया, ये है डिपार्टमेंट, और इसलिए ये लग रहा है कि आप लोगों का रोल और हम लोगों का रोल अभी फिर से 148 के केसेस में इस साल में आने वाला है बहुत सारा, बिकॉज डिपार्टमेंट इज ऑल थ्रू आउट सेइंग कि ये, और हाईलाइट जो फर्स्ट दिन और सेकंड दिन हाईलाइट हुआ सब जगह, थर्ड दिन थोड़ा व्हाट्सएप मैसेजेस में भी मॉडिफिकेशन हो गया, बट 2 दिन जो हाईलाइट हुआ वो यही हुआ कि रेवेन्यू के फेवर में जजमेंट आ गया और हाई कोर्ट का जजमेंट रिवर्स हो गया। So therefore, we have to be very careful while dealing with all these matters. High Court's judgments have not been reversed. केवल मॉडलिटी चेंज हुई है। हाई कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से डिपार्टमेंट को दोबारा 148 का नोटिस देना था नए लॉ के हिसाब से, लेकिन देना इसी कंडीशंस पर था, 13, 14 में नहीं दे सकते थे, 14, 15 में नहीं दे सकते थे। इन तीनों सालों में 15, 16, 16, 17, 17, 18 में 50 लाख से ऊपर के दे सकते थे। हाई कोर्ट ने लिखा कि आप एज पर नया लॉ नोटिस जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा कि हम पुराने नोटिस को नए लॉ में इशू किया हुआ नोटिस मान लेंगे, लेकिन नए लॉ में सारे प्रोटेक्शन अवेलेबल रहेंगे। दोनों का मतलब यही है। तो the position of law has not been changed even after Supreme Court judgment, and therefore this discussion meeting was required only for this purpose, that Supreme Court judgment is important now that the High Court judgment has become law of the land. Not because it has reversed the position of the High Court,
but because now Supreme Court also says that कानून नया वाला ही लगेगा जहां भी नोटिस 1/4/2021 के बाद इशू किया। ये क्लियर हो गई है पोजीशन सुप्रीम कोर्ट से। और प्रोटेक्शन नई टाइम लिमिट का अवेलेबल रहेगा। कोविड पीरियड वाला जो रिलैक्सेशन नोटिफिकेशन है कि टाइम लिमिट बढ़ा के 30 जून तक कर दी, वो प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं रहेगा। नया कानून लगेगा, नए कानून में टाइम लिमिट वाला 149 का प्रोटेक्शन अवेलेबल रहेगा। और भी जो प्रोटेक्शन है, मतलब 50 लाख वाला या अप्रूवल वाला जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर से, वो भी अवेलेबल रहेगा। एंड जनरली जो 148 में प्रोटेक्शन होते हैं वो भी अवेलेबल रहेंगे। लाइक आपको जिस चीज को रीजन टू बिलीव वाले जजमेंट सब खत्म हो गए। रीजन टू बिलीव क्या नहीं, आप ये कहें कि रीजन टू सस्पेक्ट है इसलिए रीओपनिंग नहीं हो सकता, रीजन टू बिलीव नहीं है, थर्ड पार्टी एविडेंस है इसलिए हम इसको रीजन टू बिलीव नहीं मानेंगे, ये सब आप रिलाई नहीं कर सकते। आपके ऑब्जेक्शंस में ये सब नहीं लिखे आप, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। तो पुराने वाली कमेंट्रीज, चतुर्वेदी प्रतिसारिया या पालकी वाला की कमेंट्री से आप 148 के ऑब्जेक्शंस के लिए जजमेंट्स निकाल के ऑब्जेक्शंस बनाए या किसी पुराने को कट एंड पेस्ट करके बनाए, वो काम नहीं करें, क्योंकि वो सारे ऑब्जेक्शंस आपके खत्म हो गए हैं। अब ग्राउंड नया कानून लगेगा तो नए कानून में रीजन टू बिलीव की रिक्वायरमेंट ही नहीं। तो आपके रीजन टू सस्पेक्ट वाले जजमेंट या रीजन टू बिलीव वाले वो जजमेंट जिसमें कोर्ट्स कहते हैं कि इसको रीजन टू बिलीव मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, वो सब बेकार। या जिनमें कोर्ट्स कहता है कि रीजन टू बिलीव में प्राइमा फेसी सैटिस्फैक्शन सफिशिएंट है, सफिशिएंसी ऑफ द रीजंस कैन नॉट बी सीन, वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो जजमेंट सब बेकार। अब रिक्वायरमेंट केवल एक है, 148 ए का नोटिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इशू किया जा सकता है। तो अब आपको ये चीज देखनी है कि जिस बेसिस पर आपको नोटिस इशू हुआ है वो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में फॉल करता है कि नहीं करता है। अगर वो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है तो आप ऑब्जेक्शंस में ये बनाएंगे कि इंफॉर्मेशन नहीं है या वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं है। और जिनको नहीं मालूम है कि बोर्ड की पॉलिसी क्या है, वो बोर्ड से पॉलिसी लीजिए, बोर्ड की पॉलिसी डाउनलोड कीजिए, बोर्ड की पॉलिसी निकालिए और फिर देखिए इसमें फॉल नहीं करता है। और अब ये झगड़ा पड़ेगा, डिपार्टमेंट कहेगा ये इंफॉर्मेशन है, आप कहेंगे ये इंफॉर्मेशन नहीं है या वैलिड इंफॉर्मेशन। इट इज नॉट इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 147 and 148. Therefore this cannot be used. You have received, कई बार असेसिंग ऑफिसर अगर ये गलती करे या ये लिखे कि फलाना असेसिंग ऑफिसर ने कहा इसलिए मैं रीओपनिंग कर रहा हूं, उस केस में ये कहा कि इस केस में रीओपनिंग कर दो इसलिए मैं कर रहा हूं, तो आप कहेंगे उस केस में कहा ये डिपार्टमेंट का जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है इसमें कहाँ लिखा हुआ है, how this can become information. So please mind, you have to carefully draft your objections so that later on it can be argued in appeals or in courts that the reasoning of reopening was not valid. Apart from that, if you do not know whose approval has been taken, आप अप्रूवल की बेसिस पर चैलेंज करिए। उसके अलावा अगर डिपार्टमेंट, मुझे सुनने में आया है कि डिपार्टमेंट सेंट्रल लेवल से बहुत सारी एसओपीज इशू करके नीचे सब ऑफिसर्स को भेज दिए, बट सपोज आपके केस में 2 वीक में मटेरियल या इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो भी ग्राउंड बनेगा, बिकॉज नाउ दिस इज द मैंडेट लाइक लॉ। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून बना लीजिए आप। 2 वीक की टाइम लिमिट है उनको इंफॉर्मेशन देने की। अगर 2 वीक में इंफॉर्मेशन नहीं दी, सॉरी 30 डेज में इंफॉर्मेशन नहीं दी, इज अनदर ब्रीच एंड यू कैन कंसिडर दिस टू बी अ ब्रीच एज द ब्रीच ऑफ लॉ। ये डायरेक्टली ब्रीच नहीं है, ये मैंडेटरी प्रोविजंस का ब्रीच है, because the powers of article 142(1) has been used by Supreme Court, it has to be treated to be law. वो वहां गलती कर दे डिपार्टमेंट, another provision।
आपका ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद उन्होंने जो 148A का ऑर्डर पास करा है वो 30 दिन में नहीं पास करा, वहां मिस्टेक कर दे, another opportunity to challenge that it has become barred by limitation. So apart from these things which I was telling, this has become another ground for challenging. So you have to be very careful in next few days, next few weeks, that what happens in all those matters. अब डिपार्टमेंट के सामने एक समस्या और आई, कुछ डिपार्टमेंट ने जो पुराने हाईकोर्ट के जजमेंट जो यहाँ रिवर्स हुए, वो हाईकोर्ट के जजमेंट मानते हुए नए 148A के नोटिस इशू कर दिए। अब उनके सामने समस्या ये है कि दो 148 के नोटिस हो गए। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम पुरानी 148 के नोटिस को भी 148A का मानेंगे, और असेसिंग ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की बात मानते हुए कि आप नया इशू कर सकते हैं, नए लॉ में नया भी इशू कर दिया। तो वो डिपार्टमेंट ये कंफ्यूजन में है कि हम ये करें कि ये करें, इसको माने नोटिस कि इसको माने, पुराने नोटिस में इंफॉर्मेशन, और आप कहेंगे बहुत सारे एसएससी चैलेंज करेंगे, हाउ देयर कैन बी टू 148 नोटिस, इसमें कुछ और दे रहे हैं, उसमें इंफॉर्मेशन कुछ और दे रहे हैं, इसमें कुछ और दे रहे हैं, और दोनों की अलग दोनों की अलग अलग गवर्न हो रहा है, दोनों कैसे हो सकता है? दो 148A के नोटिस पैरेलल कैसे चल सकते हैं? तो या तो डिपार्टमेंट उसको विड्रॉ करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रेज्यूम कर लिया कि डिपार्टमेंट रेमेडीलेस हो गया, क्योंकि डिपार्टमेंट ने प्रेज्यूम करा कि हम रेमेडीलेस नहीं हुए, हमने दोबारा इशू कर दिया। So there will be another conflict. What will happen? Time would tell, but this would be one more ground to challenge. Now many SSCs would ask you, at what stage do we challenge? कब करें चैलेंज? क्योंकि जीकेएन का जजमेंट वो तो कहता था आपके पास 148 आए, सबसे पहले आप रिटर्न भरिए, फिर आप रीजन मांगिए, और रीजन मांगने के बाद ऑब्जेक्शन फाइल करिए, ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद ऑब्जेक्शन डिस्पोज ऑफ हो गया, और जब डिस्पोज ऑफ हो जाए तो आप चैलेंज कर दीजिए, मेन ऑर्डर पास होने के पहले आप चैलेंज करिए। अब यहाँ तो वो है ही नहीं, आपको रिटर्न भरने का नंबर तो आया नहीं, क्योंकि 148 तो इशू नहीं होगा, पहले तो 148A इशू होगा, तो जीकेएन कैसे लगेगा? क्योंकि ए में तो रिटर्न भरने का बोल ही नहीं है, तो शोकॉज नोटिस दे रहे हैं, आप उसके ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्शन को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ का ऑर्डर 148A D में पास करें, उसके बाद 148 का नोटिस जारी कर रहे हैं। तो आपको अगर रिट पिटीशन फाइल करनी है तो इस स्टेज पर करनी पड़ेगी जहां 148A D का ऑर्डर पास हुआ है और 148 का नोटिस इशू हुआ है। So that is the stage when you have to invoke the writ jurisdiction of the High Court, if at all you have to go in writ jurisdiction. वहां पे आपको हाई कोर्ट में चैलेंज, so that would be another important stage where you need to advise the client that this is the stage where you need to challenge. If you have to stop creation of the demand after passing of the order, otherwise the assessment order would be passed and the demand would be created and the matter would go in appeal and you have to deposit some amount. So if you have to stop that hassle or that process, you have to seek injunction from the court, you have to seek stay from the court, and you have to straightway go to the court after passing of 148A D order. So that would be another important thing. Now, this is what I have already discussed. Now, defense is available. I have already discussed these 2 points also, that wherever it is not based on information and wherever there are other arguments on any of the grounds which are there in the new provisions from section 147 to 151A, over the period बहुत सारे नए ground और interpretation और develop होने वाले information का reason और develop होने वाला है. Under that also you should apply, you have to apply your mind whether your particular case or in the facts of your case, what could be a new defense in which can be invoked in your case. Income chargeable to tax has to be proved. Why I have mentioned this? Because
even in the new provision, what they mentioned about escaped income, that information should be such which ultimately results in escaped income, which is chargeable to tax. So it is not that any information, अभी तक तो हम बात कर रहे थे इंफॉर्मेशन भी है कि नहीं, अब हम बात करें अगर इंफॉर्मेशन है भी, वो भी चैलेंज हो सकता है। इंफॉर्मेशन होते हुए इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में फॉल कर रहा है, फिर भी चैलेंज हो सकता है। वो कब चैलेंज हो सकता है? वो उस इंफॉर्मेशन से इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं निकल रही है, वो प्रूव इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ये पता नहीं पड़ रहा है कि इनकम चार्जेबल टू टैक्स कौन सी होगी। इट कैन नॉट बी ए जनरल इंफॉर्मेशन। कोई इस आदमी के यहाँ बहुत बड़ी मैरिज हुई तो ये इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में तो आ सकता है, बट बहुत बड़ी मैरिज हुई, उस मैरिज में इनकम डिस्क्लोज यूज करी कि नॉट डिस्क्लोज यूज करी, इसका हमने बैंक अकाउंट पकड़ लिया फॉरेन, वो बैंक अकाउंट डिस्क्लोज है कि नॉट डिस्क्लोज है, ये तो आपने कहीं लिखा ही नहीं। तो ये इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन इंफॉर्मेशन वो नहीं है जिससे इनकम चार्जेबल टू टैक्स व्हिच हैज एस्केप्ड असेसमेंट इज रिवील्ड, देयरफॉर रीओपनिंग इससे भी नहीं हो सकता। So you have to keep in mind, you have to develop this argument also, that some cases may fall in the realm of information, they will still not fall in the information which is resulting in an income. And change of opinion का मैंने already जिक्र कर लिया, because वो risk management strategy में नहीं आ रहा है डिपार्टमेंट का, and therefore it would not be possible for the department। वो जो जिन केसेस के लिए चेंज ऑफ ओपिनियन के लिए हमको दिमाग लगाना पड़ता था जजमेंट्स में, कि कोर्ट के जजमेंट्स रिलाई करने पड़ते थे टू टेक द बेनिफिट ऑफ दोस केसेस, टू टेक द बेनिफिट ऑफ चेंज ऑफ ओपिनियन, वो नहीं लेने पड़ेंगे। अब हम साफ साफ कह सकते हैं जहां चेंज ऑफ ओपिनियन है, कौन से केसेस में चेंज ऑफ ओपिनियन होता है? जहां डिपार्टमेंट ने दिमाग लगा के 143(3) में पहले वाला ऑर्डर पास करा है और अब दोबारा रीओपनिंग कर रहा है, चाहे विद इन 3 इयर्स वाला भी है। प्लीज माइंड, डिपार्टमेंट का केस विद इन 3 इयर्स वाला है, लेकिन रीओपनिंग कौन से केस में करा है? जहां स्क्रूटनी में असेसमेंट हो गया, स्क्रूटनी में वो इश्यू डिस्कस करा है और डिस्कस करके अलाउ किया है, और अब डिपार्टमेंट कहता नहीं 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 हमारे हिसाब से अलाउ नहीं होना चाहिए। वो नया इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, वो चेंज ऑफ ओपिनियन है, इंफॉर्मेशन में रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में नहीं आ रहा है। उसको 50 लाख से ऊपर होते हुए, 50 लाख का तो काम ही है, 3 साल में तो कितने भी रुपए में ऊपर हो सकता है, लेकिन 3 साल के पीछे वाला 50 लाख से ऊपर होते हुए भी आप चैलेंज कर सकते हैं। विद इन 3 इयर्स किसी भी अमाउंट का रीओपनिंग किया तो आप चैलेंज कर सकते हैं, इफ इट इज अ केस ऑफ चेंज ऑफ ओपिनियन। एंड ऑफ कोर्स दिस ग्राउंड also remains on the basis of some of the leading judgments, that approval जो कमिश्नर करे वो मैकेनिकल नहीं होना चाहिए, वो थॉटफुल अप्रूवल होना चाहिए। और कुछ केसेस में तो बिल्कुल साफ साफ प्रूव हो जाता है। और क्यों प्रूव हो जाता है? कि आजकल डिपार्टमेंट का कम्युनिकेशन ईमेल से होता है। अप्रूवल के लिए गया 11:32 पर और अप्रूवल होके आ गया 11:33। तो आप ये प्रूव कर सकते हैं सर कि ऐसा ये अप्रूवल है क्या? आपने जो लॉ में अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है वो सैंक्शन कर रहा है, तो बिना दिमाग के सैंक्शन कर रहा है, तो उस रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ अगर सैंक्शन करने वाला दिमाग ही नहीं लगा रहा है? If it is a mechanical approval and you can notice the dates properly, notice the time properly, then also on that ground it can be challenged. There will be many cases, many issues which would be open for litigation. And like this first issue on the board, जो first issue है उसमें ये लिखा है, ये कैसे क्या चीज चैलेंज हो सकता है, क्या चीज ओपन क्वेश्चन है, क्या चीज डिस्प्यूट में आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये लिख दिया कि जहां रिट पिटीशंस फाइल हुई है वहां ये अप्लाई होगा। बहुत सारे एसएससीज की केस में जहां रिट फाइल ही नहीं हुई है, उस केस में डिपार्टमेंट का 148 का नोटिस 148A का नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब वो पुराना नोटिस है वो तो वैसे ही गलत है क्योंकि वो 148 का है, उसको 148A का माना नहीं जा सकता।
और अब 31 मार्च 2022 भी निकल गया, जिसका 22 में टाइम जिसका आज भी टाइम है वहां तो डिपार्टमेंट अब दे सकता है 148, लेकिन जिसका 22 में टाइम एक्सपायर हो गया उसका तो फिर भी हो गया एक्सपायर, उसका क्या हो? जिस आदमी ने कुछ केसेस में इसलिए जहां रेट फाइल नहीं करी वो और ज्यादा बेनिफिशियल हो, क्योंकि उनके केसेस में एसएससी, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जनरल लॉ तो डिक्लेयर करा, लेकिन लॉ डिक्लेयर करते हुए ये लिख दिया कि लॉ डिक्लेयर उन सब केसेस में अप्लाई होगा जहां हाई कोर्ट्स में लिटिगेशन में मैटर था या जहां रिट फाइल में। तो रिट फाइल अगर करी नहीं है और उन नोटिसेस में 31 मार्च 2000 जहां रिट फाइल नहीं करी है वहां बहुत सारे असेसिंग ऑफिसर ने सावधानी ये रखी है कि दोबारा नोटिस इशू कर दिया 31 मार्च 2022 के पहले, जो टाइम लिमिट अवेलेबल थी उसमें, जो 3 साल में और 50 लाख से ऊपर वाले आ रहे थे उसमें 13-14 के बाद वाले मैटर्स में नोटिस इशू कर, लेकिन जहां इशू नहीं करा वो केस खत्म ही हो गया, बिकॉज वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से भी प्रोटेक्ट नहीं हुआ। तो उन केसेस में अगर डिपार्टमेंट उन नोटिसेस को, जो पुराने नोटिसेस उनको 148A मानता है, 8A का मानता है, वो फिर आपको चैलेंज करना, बिकॉज दे आर नॉट द केसेस वेयर सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट अप्लाई। नाउ एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि पार्लियामेंट इसका रेट्रोस्पेक्टिव लॉ ला सकती है ऑन द सेम लाइंस ऑन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज देयर, क्योंकि ऐसा 142(1) में लिखा हुआ है। ये 142(1) आर्टिकल के डायरेक्शंस तब तक वैलिड होंगे जब तक ये गवर्निंग लॉ से सुपरसीड नहीं हो गए हो, किसी का लॉ ले आए और वो प्रेसिडेंट से असेंट मिल जाए तब तक ये डायरेक्शन लगेंगे, और जब लॉ ले आए तो वो डायरेक्शन लगेंगे। उनने अगर उन नोटिसेस को भी कवर कर लिया जिन नोटिसेस में रिट फाइल नहीं कर तो अलग बात है, अदरवाइज वो नोटिसेस स्पॉट फ्री हो जाएंगे। नाउ एक सिचुएशन और आएगी जो आपसे कई सारे एसएससी सवाल पूछेंगे, हमसे सवाल पूछ रहे, हमसे पूछ, तब हमारे केस में हाईकोर्ट से अभी क्वेश नहीं हुआ, खाली स्टे मिला हुआ है। उस केस में अब क्या होगा? अब ये नोटिस हाईकोर्ट में लिटिगेशन में पेंडिंग है, नोटिस तो नया नोटिस बन गया 148A। अब उस नए नोटिस को बन के अब हम क्या करें? हाईकोर्ट में उसको लड़ना है, नीचे असेसिंग ऑफिसर मटेरियल देगा, फिर से लड़ाई चालू होगी, हाईकोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या वो जो इसमें कह रहे हैं बाकी क्वेश्चंस पे लड़ाई चालू है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है 149 का आप डिफेंस ले सकते हैं, वो यहीं पे ले ले या क्या करें? ये भी एक झगड़ा चलने वाला है, इसका भी व्यू डेवलप होगा। एसएससीज हाई कोर्ट्स में आर्ग्यू करेंगे कि बिकॉज अदर डिफेंसेस आर अवेलेबल, देयरफॉर इस रिट पिटीशन में उसको 148A का नोटिस मान भी लें तो आपको टाइम लिमिट का डिफेंस अवेलेबल है, जो हम यही हाई कोर्ट में ही आर्ग्यू कर सकते हैं। इसलिए वापस एसएससी के पास क्यों जाए, वापस असेसिंग ऑफिसर के पास क्यों जाए, तो दोबारा रिट को फाइल करें, हम तो यही आर्ग्यू कर लेंगे क्योंकि अभी हाई कोर्ट के पास मैटर पेंडिंग है। और कुछ केसेस में हाई कोर्ट्स कह देंगे नहीं नहीं, अब ये नोटिस तो ना डीम्ड नोटिस हो गया, तो आपकी रिट को या तो मॉडिफाई करिए, या डीम्ड हो गया तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद, ऑब्जेक्शन फाइल करने के बाद, डिस्पोज ऑफ करने के बाद हो सकता है डिपार्टमेंट खुद ही ड्रॉप कर दे, नहीं तो आप हमारे पास आ जाना। This can also be there. Time would tell what high courts would pass, but here there may be a different situation in the high courts. And for as 15, 16, 16, 17, 17, 18 is there, wherever amount is below 50 lakhs, departments would take up the matter, but I have already given my view that here the matters would be governed by new law and would be barred by limitation. You may take up this matter if it is pending in the High Court right now, or take up this matter before the assessing officer. If it drops, it is good. Otherwise, it may be again taken up in the courts. Now, Revenue has issued various notices after 21 to 30th March, 30th June 21, based on information from various sources. I have given several examples. Departments, other officers have given the information, or other agencies have given the information, or investigation wing has given the information, or Insight portal has given the information. Whether this would be treated to be information for the purpose of risk management strategy, in my view, this could be challenged, and this would be a
very big issue in the legal battle before the courts between the department and the assessees, because many of these things would be held to be not the information, or at least not the information which is revealing the income which has escaped us. So it could be challenged on that basis. That is all about my presentation, and now is the time for question answer. If there are any issues, questions, I can take up the questions in 5-10 minutes because we still have 10 minutes. So over to you, audience. Thank you. अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है सर, तो आज की तारीख में इसको एक्सटेंड सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई नहीं कर सकता, इवन हाई कोर्ट्स कैन नॉट डू इट। विचित्र है, लेकिन आज की तारीख में ये कानून है, मतलब ये पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून जैसा ही कानून है सर, और इसलिए इसको हाई कोर्ट भी इस टाइम, नॉर्मली कई चीजों में हाई कोर्ट कहते हैं कि इसमें देरी हो गई तो हम एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ तो ये टाइम हाई कोर्ट भी एक्सटेंड नहीं कर सकता, या तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मॉडिफाई करे या किसी अप्रोप्रिएट केस में वो केस सुप्रीम कोर्ट में जाए जहां सुप्रीम कोर्ट ने इसको ओवररूल करके 2 जज की बेंच ली और कोई 3 जज की बेंच ओवररूल करके टाइम एक्सटेंड करे, अदरवाइज सेम बेंच अपना ऑर्डर मॉडिफाई करे, अदरवाइज ये टाइम लिमिट एक्सटेंड नहीं होगी। ये कानून जैसा हो, कानून है, कानून आ गया तो पार्लियामेंट खाली एक ही चीज है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अलग से लॉ बनाया है, 2 ही चीज है। एक तो बनाया है कि इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट नहीं, डिस्पेंस, तो वहां पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून ओवररूल, सुप्रीम कोर्ट का कानून ये 142(1) में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, और दूसरी ये 2 वीक वाला। इसके अलावा बाकी सारा जो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, बिल्कुल बिल्कुल नेट में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, अवेलेबल है आपको डिफेंस। हमारी फीस क्यों की जरूरत ही नहीं है, इसमें आपकी फीस भी दे सकता है कोई भी। देखिए इन मैटर्स में, सारे मैटर्स में, इनमें क्या हुआ, इन मैटर्स में शुरू में मैटर्स हुए, शुरू में मैटर्स में आपको बहुत सारे ग्राउंड्स लेने पड़े, बहुत सारे कोर्ट्स का व्यू जानना पड़ा, टीवी में जाएगी कि एसबी में जाएगी ये ट्रायल करना पड़ा। एक बार व्यू सेटल होने के बाद काम इजी हो जाता है, वकीलों की फीस भी कम हो जाती है, हमारी फीस भी कम हो जाती है, सारे वकीलों की कम हो जाती है। तो हमने जो शुरू में चार्ज किया फीस, वो बाद में जो केसेस है उनमें चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनमें मैंने आर्ग्यू नहीं किया, उसमें मेरे ऑफिस से प्रकुल ने आर्ग्यू किए, अजब ने आर्ग्यू किया, उसमें जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि आपको पुराना केस दिखाना है और उस दिखा के नया ऑर्डर लेना है। पहला केस जाए या शुरू के, जब तक हाई कोर्ट की वर्डिक्ट नहीं आए तब तक प्रोफेशनल सब समझते हैं, वहां प्रोफेशनल्स का कैलिबर ज्यादा इन्वॉल्व होगा, लेबर ज्यादा इन्वॉल्व होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, कोर्ट के अंदर हियरिंग ज्यादा होगा। जब कवर्ड हो जाएगा केस, उसके बाद फीस भी कम होगी, कवर्ड होने के बाद कम होगी, तो इन सब केसेस में आपकी भी कम होनी है, हमारी भी कम होगी। असेसमेंट ऑर्डर, अगर असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया और आप हाई कोर्ट में नहीं गए और वो केस इन्हीं सिचुएशन में फॉल हो रहा है कि पुराने तरह का केस है, सपोज कि 1/4/2021 के बाद, वहां पे ये सारे ग्राउंड आप अपील में ले सकते हैं, क्योंकि अब तो डिपार्टमेंट का वो वाला केस 148A का भी नहीं बना जा सकता, और आपकी शॉर्ट विन हो गई, अपील में ग्राउंड लेके शॉर्ट विन हो, वहां तो आप आराम से अपील में ग्राउंड ले सकते हैं। वो तो 153 के हिसाब से, देखिए ये टाइम लिमिट तो 153 के हिसाब से गवर्न होगी, क्योंकि ये नोटिस जो आपका जो नोटिस इशू किया हुआ है 148A का, उसके बाद टाइम लिमिट गवर्न हो रही है 148 से,
तो वो तो 148 जब इशू होगा उससे कवर कर देगा। जवाब देते हैं 15 जनवरी जब ये 22 बिल्कुल चला गया। इस साल में तो 18-19 चला गया। जैसे पिछले साल 17-18 चला गया था, जो मैंने अभी चार्ट में बताया, वैसे इस साल अब अगर नोटिस देते हैं मार्च के बाद तो 18-19 चला गया। तो टाइम है गाना जो अब एक गाना नोटिस को बंद नहीं, देखिए दो अलग अलग बात। आप कह रहे हैं अभी मई में नोटिस दिया, अभी मई में नोटिस दिया, उसके लिए 18-19 भी खत्म हुआ। लेकिन जो पुराना नोटिस रिवाइव हो गया उसमें 17-18 ही खत्म हुआ, 18-19 खत्म नहीं हुआ। हाँ, तो 17-18 वो तो मार्च 22 के पहले दे दिया ना सब नोटिस। तो 18-19 कहाँ से खत्म हुआ उसमें, तो 17-18 खत्म हुआ। अब ये नया इससे टाइम तो क्या आएगा सर, जहां पे पुराना नोटिस रिवाइव हुआ है उसकी डेट तो जो इश्यू करने वाली डेट है वही रहेगी ना सर। सपोज पिछले मई का नोटिस दिया, अपन ऐसी बात करते हैं कि मई 2021 में नोटिस दिया, वो 18-19 का नोटिस दिया। हम ये मान रहे हैं 18-19 का नोटिस दिया और मई 21 में नोटिस दिया। अब वो मई 21 का नोटिस आपने हाईकोर्ट से क्वेश्चन करा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिस को रिवाइव कर दिया और 148A का मान लिया। अब वो नोटिस तो 31 मार्च 2022 के पहले इश्यू करा हुआ है, वो तो विद इन टाइम हो गया, वो टाइम बार नहीं हुआ। सर इस सिचुएशन में नहीं हुआ जब नोटिस मई 21 में इशू कराया तो 18-19 का टाइम बार नहीं हुआ। अगर मई 22 में इशू करा तो टाइम बार हो गया। 22 में नया आएगा ना, उनको फिर नया आएगा। सब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये है कि नया नोटिस देने की जरूरत नहीं है। आपका जो डिपार्टमेंट ने नोटिस, सर 148 का नया आएगा, 148A का नहीं। सर अपन अलग से डिस्कस करेंगे। 148 के लिए कैटेगोरिकल फाइंडिंग है कि वो नोटिस रिवाइव हो जाए, अपन अलग से डिस्कस करेंगे। 148A का नोटिस रिवाइव हो जाएगा, जो पुराना नोटिस है वो रिवाइव हो जाएगा, ये क्लियर कर पाए। नहीं, वो जो इंक्वायरी आप बता रहे हो वो ओरिजिनल असेसमेंट में हुई, तो कब हुई वो इंक्वायरी? 133(6) में हुई, 133(6) में हुई, ठीक है। ग्राउंड ये बनाया कि आपने सोर्सेज एक्सप्लेन नहीं करे। ग्राउंड ये बनाया, क्या बनाया ग्राउंड? आप अगर इस तरीके से बता रहे हैं कि असेसिंग ऑफिसर ने ये कहा कि मुझे इन्वेस्टिगेशन से ये इंफॉर्मेशन मिली, तो नहीं, आप कह रहे हैं ना 133(6) में नोटिस इशू किया और इंफॉर्मेशन मंगाई, और 133(6) में कब नोटिस इशू कर रहे हैं? जब उनके पास कहीं से इंफॉर्मेशन आ रही है, इंफॉर्मेशन आई ना सर। 133(6) में चाहे मकान खरीदा उसकी इंफॉर्मेशन आई, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन आई, वो इंफॉर्मेशन जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से आई तो इंफॉर्मेशन जरूरत नहीं है। अभी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है। अगर डिपार्टमेंट की रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से इंफॉर्मेशन आई है, इंफॉर्मेशन
अब इंफॉर्मेशन उस मामले में रिलैक्स हुआ, लेकिन इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन टाइट है। अब इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन आपने डिपार्टमेंट की रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पढ़ी कि नहीं? रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेटेड बाय बोर्ड पढ़ी है कि पहले आप वो पढ़िए, उसमें कवर होता है तो इंफॉर्मेशन है भाई। अब अगर मतलब ये आता है तो हम सबमिट कर देते हैं। आपके पास 148A का नोटिस आया और आपने उसमें शो कॉज नोटिस में ये जस्टिफिकेशन दे दिया कि ये इनकम क्यों नहीं है, और वो असेसिंग ऑफिसर ने उसको और आपका रीजनेबल है उसने मान लिया तो वो ड्रॉप करेगा। लेकिन आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि साहब ये कहाँ से खरीदा है, एग्रीकल्चर इनकम से खरीदा, वो है आपकी एग्रीकल्चर इनकम ही नहीं मान रहा है, तो वो 148 वो उसको ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ करेगा, 148 का नोटिस देगा, आपका मैटर आगे चलेगा। आपका 148A इशू करा है, ए क्या तो अभी रिटर्न भरना ही नहीं होता है। आपने ऑब्जेक्ट कर दिया कि हमको पेटेंट नहीं करते, बिल्कुल ऑब्जेक्ट करने के बाद उन्होंने ऑब्जेक्ट डिस्पोज ऑफ कर दिया, इसी स्टेज पर आप चैलेंज कर दीजिए। रिटर्न फाइल क्यों करेंगे? जीकेएन वाला सिस्टम खत्म हो गया है, क्योंकि आपके जीकेएन क्यों बनाया था, आप इसको लॉजिक समझिए। जीकेएन लॉ, जीकेएन का क्यों लॉ है? क्योंकि लोग सीधे ही 148 के नोटिस को हाईकोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा सीधे क्यों चैलेंज कर रहे हो, पहले आप डिपार्टमेंट से रीजन तो लो, रीजन का ऑब्जेक्ट करो, ऑब्जेक्ट करने पर क्या पता वो अपने आप में ड्रॉप कर दे, नहीं करे ऑब्जेक्ट डिस्पोजल करे तो आप चैलेंज करो। तो अब वो सारा काम लॉ में ही हो रहा है, जो पहले जीकेएन की जजमेंट की वजह से हो रहा था उसको कैप्चर लॉ में ही कर लिया है। तब 148A को शो कॉज नोटिस को ऑब्जेक्ट करो, ऑब्जेक्ट का ऑर्डर पास होगा, तो आप उसी स्टेज पर आ गए जैसे जीकेएन में आते थे, इस ऑर्डर पास होगा तो आप यहाँ पे चैलेंज कर दीजिए बिना रिटर्न। असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन में जो इंफॉर्मेशन है उसमें 50 लाख से ज्यादा वाला, राइट, आपने उसमें से कुछ का सोर्स जस्टिफाई कर दिया, उसकी वजह से 50 से कम आ गई। अपन ये सिचुएशन लेते हैं, आपकी सिचुएशन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर दिया कि असेसिंग ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन है 70 लाख, आपने उसमें से 30 लाख का सोर्स बता दिया, तो अब वो 50 लाख से कम रह गई, तो ये जो टाइम लिमिट रीओपनिंग की लग रही है ये 50 लाख की तो फाइनल 148 पे लग रही है, राइट, रीओपनिंग नहीं हो सकती। नहीं हो सकता, ये 50 लाख की टाइम लिमिट किसके लिए? 50 लाख की टाइम लिमिट इसके लिए नहीं कि उसके पास इनिशियल इंफॉर्मेशन क्या है। 50 लाख की टाइम लिमिट, 50 लाख की जो लिमिट है वो इस चीज के लिए कि 50 लाख की वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जिससे इनकम एस्केपिंग असेसमेंट निकल रहा है, और आपने वो जस्टिफाई, आपने क्या करा, आपने इंफॉर्मेशन देके वो कर दिया कि 50 लाख से कम। तो जो रीओपनिंग का सेक्शन लग रहा है वो किस पर लग रहा है? 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए तब रीओपन कर सकता है, 148A रीओपनिंग नहीं है। देखिए फर्क समझिए, पहले केस चालू होता था रीओपनिंग करने के बाद, क्योंकि 148 देने से सारा रामायण चालू, ऑब्जेक्शन डिस्पोज ऑफ 148 तो रीअसेसमेंट चालू हो गया। अब ये जो प्रोसेस है ये नहीं है कि 148A से रीअसेसमेंट चालू हो गया, ये प्री रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स है। तो रीअसेसमेंट चालू तो हुआ है 148 से, तो बाद में आएगा 148A के ऑर्डर पास होने के बाद, और ये इन्होंने तो समझिए आप, यहाँ 148 पहले चालू हो रहा था तो इन्होंने ये प्रोविजन जो जोड़े वो इसके पहले जोड़े, ऐसा नहीं है कि इसकी जगह 148A को सब्स्टिट्यूट कराया कि अब यहाँ से नहीं चलेगा, इन्होंने इसके पहले जोड़े। 148 जहाँ है वही है, ठीक है, 148 इशू करने के पहले ये कार्यक्रम होगा, उसके बाद 148 आए, तो ये 50 लाख की सीलिंग उस 148A पर नहीं लग रही है, इस पर लग रही है।
तो अगर आपने उसके पहले ही जस्टिफाई कर दिया कि 50 लाख नहीं हो रहा है तो 148A इशू नहीं हो सकता, और फिर भी कराया इशू तो आप उसको चैलेंज करके क्वेश्चन। वो कुछ नहीं होगा उसका। अभी इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से वो पहले इन्फॉर्मेशन देंगे फिर आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना है, इसका मतलब उसका 142(1) तो हो गया बेकार, वापस से चालू होगा सारा कार्य। यस, अभी एक आप जो बता रहे हैं उससे मेरे को एक जो मेरे क्लाइंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आज सुबह एक क्लाइंट ने क्वेश्चन पूछा, वो मैं याद आ गया, मैं तो बता देता हूँ। क्लाइंट ने ये सवाल पूछा कि आप ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो अब हमको क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उस 148 वाले में अपलोड करना है क्या 141 के जवाब में? ऐसा आपने सवाल पूछा, हम उसको अपलोड कर दें क्या? तो मैंने उनको मेरा जवाब दिया, आपको कुछ नहीं करना है, साइलेंस रखनी है। अभी बॉल डिपार्टमेंट के कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले वो करेंगे उसके बाद आपको एक्शन लेंगे। आप उस 142 तो ये आपको कुछ नहीं करना है इन सारे केसेस में, साइलेंट बैठना है। जब डिपार्टमेंट से कुछ आए उसके बाद अपना कार्यक्रम करो। ये अपलोड कर दिया 141 का जवाब दे दिया, ये कुछ भी नहीं करना। नया नोटिस इशू करेंगे, लेना पड़ेगा उनको, कंपल्सरी है। इससे डिस्पेंस विद कहाँ करिए, और इसमें भी डिस्पेंस विद तो उन्हीं केसेस के लिए करेंगे जो रिट में गए और जो नोटिस इशू कर चुके हैं। और वो क्या चीज करिए कि वो एम्प्लॉय अप्रूवल थोड़ी डिस्पेंस विद करेंगे। अभी कर लेंगे ना सर बात, बाकी जरूरत ही नहीं है सर, अभी बात कर लेंगे। पढ़े दो सर, आप इधर ही आके पढ़ो ना, नहीं पढ़ देता हूँ सर ऑर्डर, अरे मैं पूरा ही ऑर्डर पढ़ूंगा। डायरेक्शन ही पढ़ देता हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन ही पढ़ देता हूँ, सबको क्लियर हो जाएगा। कौन सा पैरा पढ़ रहे हैं आप? थर्ड। हाँ सर, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? The assessing officer shall thereafter pass orders in terms of section 148A D in respect to each of the concerned assessee. Thereafter, after following the procedure as required under section 148A, may issue notice under section 148. वो इशू अब 148 यहाँ आ रहा है, ये 22 में आ रहा है, जून में आ रहा है, तो यहाँ से टाइम 149 को अपन देखें तो 18-19 से टाइम बार हो गया। ये कहना का मतलब मेरा 18 यहाँ ये 148 माना जाएगा, तो पहले जो सब्स्टिट्यूट हो गया 148 जो ओरिजिनल आया था उसको तो कन्वर्ट कर लिया 148A में, और ये नया नोटिस आएगा आपके वो फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद, तो यहाँ से टाइम चालू होगा 149 का, यहाँ से नहीं होगा। देखिए, thereafter after following the procedure as required under section 148A, ऊपर से पढ़िए आप इसको, assessing officer shall thereafter pass orders in terms of 148A(d) in respect of each of the concerned assessees. Thereafter after following the procedure as required under section 148A, may issue notice under section 148. हाँ, अभी मैंने एक चीज आपको बताई, अब 148 का जो नोटिस है प्री 148 प्रोसीजर फॉलो होने के बाद इशू, तो जो पहले वाला 148 है उसको तो 148A मान लिया गया, उसके बाद डी का ऑर्डर पास हो गया, अब डी का ऑर्डर पास होने के बाद ही तो 148 इशू होगा, हो गया नहीं? हाँ, ये अब 149 का टाइम कहाँ से होगा, इस नोटिस से होगा, उस नोटिस से? सर 149 का टाइम लिमिट तो यहाँ वो जो सेक्शन अगर आपका पहले इश्यू करा हुआ है 148 का टाइम लिमिट
या अगर अब इशू हुआ है तो अब से चालू होगा, पुराना इशू किया हुआ है तो पुराने से चालू होगा। पुराना कन्वर्ट हो चुका है, पुराना जो है वो कन्वर्ट हो चुका है 148A में। हाँ अब ये नया आ गया, हाँ, तो यहाँ से शुरू होगा या यहाँ से चालू होगा। यहाँ से? तो उसके 18-19 गया टाइम से। हाँ, अगर 148 है तो ये 18 से चला जाएगा। हाँ। हाँ, सिर्फ यही लिखा है। अब नॉर्मली ऐसे केसेस में मैकेनिकल में फॉल कोर्ट्स का व्यू उल्टा है। आर्ग्यू करने को कर सकते हैं बट कोर्ट्स का व्यू, क्योंकि कोर्ट्स के इस तरह के ऑर्डर्स है कि आपका सैंक्शन देते समय दिमाग लगाया कि नहीं लगाया ये इंपॉर्टेंट है, उसको एक्सप्रेस कैसे किया है, शॉर्ट लाइन में किया है कि डिटेल किया है, ये जरूरी नहीं है। ये उल्टे हैं केसेस। बट अगर और कोई चीज से आप वो कर सकते हैं कि दिमाग में लगाया तो बात अलग है। वो कोर्ट कहता है कि अगर एक लाइन में भी लिखा है वापस कर, वापस कर। ये क्या चीज पढ़ रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, वो तो खत्म हो गया टाइम। कोर्ट ने 148 के नोटिस को 148A का नोटिस माना। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि वो जो एक्सटेंडेड टाइम लिमिटेड नोटिफिकेशन उसमें ये ऐसा मानेंगे कि नोटिस विद इन टाइम इशू की, ये नहीं कहा है। उल्टा कहा है इसका 149 की टाइम लिमिट का बेनिफिट जहां जहां आप ले सकते हैं, जैसे जैन साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, वहां वहां आप ले उसका बेनिफिट। उल्टा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहा है कोई भी डिफेंस जो आपको नए लॉ में अवेलेबल है वो आपको अवेलेबल रहेगा। ये नहीं कहा है जो आप कह रहे हैं कि रिलैक्सेशन एक्ट का बेनिफिट मिलेगा, ये नहीं कहा। हाँ बिल्कुल ले सकते हो सर, आप मांग सकते हो। नहीं दे तो आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में दे। वैसे तो जो आप खुद ही एसएससी इन्वॉल्व है वहां तो ले ही सकते हो। एक बार वाली अब 3 बार की जगह 2 बार ही है। एक डिस्पेंस विद अमेंडमेंट करके एक खत्म कर दी, अब 2 बार ही है। जहां अप्रूवल 148A का ऑर्डर पास करते समय ले ली, वहां वापस आपको 148 इशू करने के लिए अप्रूवल नहीं लेनी है, वो खत्म कर दिया। That is all. I think we can close. Thank you very much. I thank the organizers for providing. I request C. Ruchi Gupta ji, the Secretary of Jaipur branch, for a vote of thanks, please. Thank you everyone for being here in such a short period of time. जैसे judgment आया, so everybody was being very busy in interpreting इसका impact क्या रहेगा, and then we thought why not to hear the impact and the effect of this judgment from our own expert Sanjay ji. And so I am Ruchi Gupta, Secretary Jaipur branch, on behalf of entire management committee of Jaipur branch. Thank you sir for your presence and making us understand the impact of this judgment. Now I request Naveen Sharma ji to please come over the stage and give mementos to sir. Thank you, Naveen, for taking us through the session. I request Shailendu Mantri ji, please come, sir, please come and give the memento to members.
Thank you, everyone. I also want to thank our chairman, Kuldeep ji, and other chairmen of various branch that are with us today and who helped us to organize this session. Thank you, everyone. We are having some snacks for you. Please wait out. Thank you.